for Corporate Affairs and Defence, Shri Arun Jaitley, to give his remarks on the book. Ashley, Sika, and ladies and gentlemen, I'm indeed privileged and delighted to be associated with the release of this publication. I must confess that I got a first copy of it about an hour and a half ago, so I have glanced through it, not read it. There couldn't have been a better title, and there couldn't have been, in terms of dates, a more appropriate period than these days to have released a book of this kind. Certainly the authors of various chapters are some of the most distinguished persons who've dealt with the subjects they've written on. And I think it's a manifesto of those experts. It's not necessary that everything that is said is implementable, given the constraints of polity. But I think the editors certainly had in mind when they planned the release function today that there are at least some people in government who must read this book, at least in the early days, that they're going to be there. My own lesson of the last few years has been that not only must the government have a will and a direction to rule, it must also have the credibility to rule. And once it loses that credibility, then all the subjects that you've covered in this book virtually become unimplementable. And I think that's what we went through in the last few years. And therefore, since there was something which we all witnessed of the country getting derailed, this is an agenda that the authors feel is necessary to put India back on track. While we decide to put India back on track and endeavor in our own little way to do it, I think one of the most biggest challenges would be whether we get caught once again in transient or temporary populism and then feel happy in the first few days and are confronted with the problems in the third, fourth and fifth year of the government. Or do we discipline ourselves in a single-minded pursuit in the initial days so that the latter periods become far more comfortable? We haven't inherited the best of legacies. 2 years continuously of a sub 5% growth, high inflation, a loss of trust in the economy. But suddenly the electoral verdict itself has come as a political statement. And the world at large, the investing community outside and within India, has again started taking interest. They are now looking at India once again, something which had stopped in the previous few years. And I think it's an opportunity which we can't afford to miss. And therefore, I have not the least doubt that a lot of what you have written in this book in the coming days and weeks is going to be of immense utility as far as we are concerned. Even though I have just glanced through the book, I assure you that in the next few days, in order to be in a position to effectively do the job which is assigned to us, I'm going to read every word of it and maybe agree with a part of it. And that itself will be Vivek and Ashley and Trevor's contribution while editing this book to this new change that has taken place in India. Thank you very much, and I compliment you once again for, at a very appropriate time, having brought this publication. Thank you. Thank you, Shri Arun Jaitley, for those words. Ladies and gentlemen, may I now request the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, to share his views on the release of this book. श्रीमान अरुण जेटली जी, मंचस्थ सभी महानुभाव, मैंने किताब को ऐसे सरसरी नजर से देख रहा था।
मुझे अच्छा लगा क्योंकि हमें थोड़ी मेहनत अब कम करनी पड़ेगी। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जैसे हमने जीएम को खत्म किया, लेकिन मैंने तब किताब पढ़ी नहीं थी। उसका मतलब कि कुछ तो वेवलेंथ मिलती है ऐसा लग रहा है। यहाँ हमारे तुषार भाई बैठे हैं तो उन्होंने पानी पर लिखा है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि उसमें वही बातें होगी जो मैंने गुजरात में कभी की थी। अशोक गुलाटी जी ने एग्रीकल्चर में लिखा है, तो मैं कई वर्षों से उनसे लगातार बातचीत करता था, तो काफी बातें मिलती जुलती आती हैं। लेकिन जो मूलभूत समस्या हमारे देश में है, एक थिंक टैंक कंसेप्ट एक सीमित रह गया है, वो आगे बढ़ नहीं पाया है, जो दुनिया के देशों में बहुत ही ताकतवर व्यवस्था है। और उसके कारण सरकार की पॉलिसियां जो बनती हैं उसमें इंटेलेक्चुअल इनपुट बहुत कम होता है। हम लोग जो सालों से उस क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे ब्यूरोक्रेट हो या पॉलिटिशियन हो, हम उसी धैर्य से आगे बढ़ते हैं। दूसरा, दुनिया के जितने भी समृद्ध देश हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क में यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर 2017 में कोई करना है तो 2014 से सैकड़ों स्टूडेंट्स, सैकड़ों फैकल्टीज उस पर रिसर्च करते हैं। उसके बाद इतना मंथन होता है और बाद में कोई डिसीजन पर पहुंचते हैं। उसके कारण वो बहुत ही सटीक चीज आती है और उस कंट्री के इंटरेस्ट के लिए भी होती है और ग्लोबल चेहरा क्या दिखाना, उसके लिए भी सब कुछ उसमें रहता है। हमारे यहाँ ये कमी महसूस होती है। और एक काम अगर हम ये कर पाए तो मैं समझता हूं कि हम अच्छी दिशा में महत्वपूर्ण हमारा कदम होगा, और हो सकता है आज उससे पहली शुरुआत हो। उसी प्रकार से अभी भी हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ज्यादातर रोड्स, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, करीब करीब इसी के दायरे में हमारी बातें आती हैं। अगर हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए सोचना हो तो हम हाईवेज से हाईवेज पर कैसे बढ़े हैं, हाईवेज से इंफॉर्मेशन बेस की ओर कैसे आगे बढ़े हैं, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इस पर कैसे बढ़े हैं। हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। एक जमाना ऐसा था कि जहां पानी होता था, नदी होती थी, वहां शहर बसता था। समय रहते बदलाव आया। जहां हाईवेज गुजरते थे वहां शहर बसता था। नियर फ्यूचर में जहां से ऑप्टिकल फाइबर गुजरता होगा वहां शहर बसने वाला है। यानी पूरा जगत बदल रहा है, लेकिन हम वही पुराना अपना रोड्स उसी में लगे रहते हैं। उसमें बदलाव, और ये बदलाव तब आएगा जब हम इंटेलेक्चुअली बड़ा मंथन करने की आदत रखते हैं, तब जाकर के होता है। भारत के विकास की दिशा में हम सालों से बात कहीं कुछ गलत नहीं है कि हम गांवों का देश हैं, हम कृषि प्रधान देश हैं, अच्छी बात है, उसको उतना ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमने अर्बन डेवलपमेंट को हमेशा एक बोझ माना, संकट माना, चैलेंज माना। अच्छा होता आज से 30 साल पहले अर्बन डेवलपमेंट को एक अपॉर्चुनिटी मान लेते हैं। जो सबसे बड़े ग्रोथ सेंटर है, आज जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है वो न होती, हम एडवांस में सोच सकते हैं। और आज जब मैं देश को जरूरत है 100 स्मार्ट सिटीज की जो बात कर रहा हूं, उसके पीछे मेरे मन में है कि अगर हमें बदलाव लाना है और जो नौजवानों को रोजगार के लिए हम सोच रहे हैं, तो हमें इन दिशों पर एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा। गांव का भी डेवलपमेंट हम लोग उस एकदम से कॉम्प्रिहेंसिव सोच के साथ, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ किया, ऐसा तो नजर नहीं आता है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमने ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान देना है और देश की इकोनॉमी में थोड़ा सा बल देना है। तो हमारा जो तिरंगा झंडा है, ट्राई कलर में हमारा फ्लैग है,
उसको अगर हम बल देकर के कुछ करें, जैसे उसमें ग्रीन कलर है, ग्रीन रिवॉल्यूशन पर हम कैसे बल दें, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी हमारी फोकस प्रोडक्टिविटी पर कैसे बढ़े, जमीन बढ़ने वाली नहीं, जमीन कम होती जा रही है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। पल्सिस के क्षेत्र में शायद पिछले 50-60 साल में कोई काम ही नहीं हुआ है। हम पल्सिस पर कैसे बल दें, प्रति हेक्टर पल्सिस का प्रोडक्शन कैसे बढ़े। एट द सेम टाइम बड़ी चैलेंज है कि हमारे पल्सिस में प्रोटीन कंटेंट कैसे बढ़े, और आज हमारी यूनिवर्सिटीज उस दिशा में काम नहीं कर पाती है। दुनिया में भी कहीं पल्सिस में प्रोटीन कंटेंट बढ़े, उसके लिए जो काम होना चाहिए, और शायद दुनिया के बहुत बड़े समाज के लिए ये बहुत बड़ा अनिवार्य है, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। लेकिन हमारे डेवलपमेंट के मॉडल में इन बारीकियों से इन चीजों पर हम कैसे बल दें। समय की मांग है, हम वैल्यू एडिशन पर कैसे जाएं। आज हमारा किसान मर रहा है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। एक तरफ 30% एग्रो प्रोडक्ट वेस्टेज जाता है, वेयर हाउसेज की व्यवस्था नहीं है, किसान मेहनत करता है, उसको पैसे नहीं मिलते हैं। इसके संबंध में हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उसको हम कैसे उसके जीवन को बचाएं, और ये सब संभव है, कोई मुश्किल काम नहीं है। वेयर हाउसेज कंसेप्ट को अगर डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए तो बहुत बड़ी ताकत है। हमारे रेलवे का अप्रोच, किसी रेलवे स्टेशन पर मानिए मंडे को मार्बल आया और कहा जाए कि मार्बल मुंबई पहुंचाना है, और ट्यूसडे को टमाटर आया कि मुंबई पहुंचाना है, तो रेलवे वाला पहले मार्बल भेजेगा क्योंकि मंडे को आया था, टमाटर नहीं भेजेगा, वो बिगड़ तो भेजेगा। यानी चीज छोटी है, क्यों हम एग्रो को प्रायोरिटी दे करके हमारी रेलवे व्यवस्थाओं के मूड को क्यों न बदले। सेंसिटाइज करना होता है, कोई बहुत बड़ा एकदम से नई चीजें ला करके होता नहीं है। दूसरा है व्हाइट कलर, व्हाइट रिवॉल्यूशन की ओर किसी समय होगा। आज हमारे पास दुनिया में एवरेज पशुओं की संख्या से हमारी ज्यादा है, कैटल ज्यादा है, लेकिन मिल्क प्रोडक्टिविटी बहुत पीछे है। उसके कारण इकोनॉमिकली वो वायबल भी नहीं है। हमारा किसान, उसके लिए जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो नहीं है। उसको हम आधुनिक कैसे बना सके। इवन हमारे यहां कैटल हेल्थ केयर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। अगर ये स्थिति रही तो हम जो व्हाइट रिवॉल्यूशन की कल्पना करते हैं वो नहीं हो पाता। और तीसरी सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन, मैं जानता हूं, मैं सैफ्रॉन कहते ही यहां कई लोग होंगे जिनको हाथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो एनर्जी का कलर है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऐसा संकट की ओर हम जूझ रहे हैं। हम एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट बनना, उस क्षेत्र में हम कैसे बल दें। ग्लोबल वार्मिंग और एनर्जी सेक्टर दोनों का टकराव सतत चल रहा है, उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालें। हम सूर्य शक्ति से आशीर्वाद प्राप्त देश हैं। ये हमारा पूरा इलाका जिसके पास ये सोलर रेडिएशन की बहुत बड़ा हमें गिफ्ट है, हमने उस पर क्यों बल नहीं दिया अब तक, कैसे बल कर सकते। हम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हम उस प्रकार की पॉलिसीज लाएं। हम एनर्जी सेक्टर में, फिर गैस हो, पेट्रोलियम सेक्टर हो, इन सारे विषयों में भारत जैसे देश ने प्रोएक्टिव इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, तब जाकर के। अगर अमेरिका कल तक गल्फ कंट्रीज पर डिपेंडेंट था एनर्जी में, आज एक्सपोर्ट की पोजीशन में आ गया, गैस दुनिया को देने की उसकी ताकत आ गई। क्या हम उस दिशा में सोच सकते हैं? सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन, ये हमें फोकस करेगा। उसके अंदर हमारा एक ट्राई कलर में ब्लू कलर का हमारा अशोक चक्र है। ब्लू रिवॉल्यूशन मेनली फिशरीज के क्षेत्र के लिए जोड़ा जाता है। हमारे पास इतना बड़ा सामुद्रिक
विरासत है। दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए सब कुछ है, लेकिन हम उसने मॉडर्नाइज नहीं किया। आज भी हमारा फिशरमैन उस पुराने जमाने से चल रहा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसको हम ग्लोबल मार्केट कैप्चर कर सके। इतना ही नहीं, हम ऑर्नामेंटल फिश, इतना बड़ा दुनिया में मांग है ऑर्नामेंटल फिश की, ये काम हमारे मछुआरे परिवार के महिलाओं के द्वारा हो सकता है। हमारा पूरा ट्राइकलर की चारों जो सिंबॉलिक चीजें हैं, अगर उस पर हम फोकस करें तो हम जिस ग्रामीण जीवन के आर्थिक विकास की व्यवस्था की बात करते हैं, बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। पानी एक ऐसा संकट की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्या हमारा सहज स्वभाव पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस मंत्र के साथ हमें करना पड़ेगा। जल संचय पर भी बल हो, जल सिंचन पर, माइक्रो इरिगेशन। मुझे याद है, मैं गुजरात में जो हमारे शुगर केन की खेती करने वाले लोगों को जब मैं माइक्रो इरिगेशन के लिए बोल रहा तो कोई मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी सबको लगाया। आज हमारा अनुभव यह है कि इवन गन्ने की खेती माइक्रो इरिगेशन से बहुत बढ़िया हो रही है। उसमें शुगर कंटेंट भी ज्यादा आ रहा है और उसके कारण इकोनॉमिकली वो काफी वायबल हुआ है। आवश्यकता है कि एक विज्ञान को नए तरीके से जोड़ करके हम उसको कैसे इसको जोड़ें। भारत को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इस ताकत को हमें समझना होगा। 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। दुनिया के वो देश जिनके पास यूथ पावर नहीं है, वे भी स्किल डेवलपमेंट पे बल दे रहे हैं। पूरे विश्व में स्किल्ड मैन पावर का एक बहुत बड़ा मार्केट पड़ा हुआ है। ऐसे मार्केट को टैप करने की ताकत जिसके पास मैक्सिमम यूथ है उसके पास है। न सिर्फ हिंदुस्तान के स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट, हम ग्लोबल मैन पावर की रिक्वायरमेंट को लेकर के हम स्किल डेवलपमेंट का प्लान क्यों न करें। आज दुनिया को इतने नर्सिस की जरूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, इवन टीचर्स, दे डोंट हैव टीचर्स। क्या यह देश कभी टीचर्स एक्सपोर्ट करने के लिए सोच सकता है? हर दुनिया को टीचर्स की जरूरत है। और एक व्यापारी जाएगा दुनिया के किसी देश में ज्यादा से ज्यादा डॉलर लाएगा, लेकिन एक टीचर जाएगा तो पूरी पीढ़ी को ले जाएगा। यह ताकत होती है टीचर में। हम ग्लोबली कैसे इंपैक्ट पैदा कर सकते हैं, हम उस विजन के साथ। लेकिन बेस्ट टीचर तैयार करने के पास हमारे पास व्यवस्था है नहीं है। हम आईआईएम में अच्छे सीईओ तैयार करने के लिए ढेर सारा काम करते हैं। 2 करोड़ के पैकेज वाला सीईओ मिलेगा, 3 करोड़ पैकेज वाला सीईओ मिलेगा, लेकिन बेस्ट टीचर पाना है। और किसी को भी पूछिए, अमीर से अमीर व्यक्ति को पूछो, हाईली इंटेलेक्चुअल व्यक्ति से पूछो, हाईली प्रोफेशनल व्यक्ति को पूछो, भाई तुम्हारे जीवन की एक इच्छा बताओ, तो बताएगा मेरे बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा, मेरे बच्चे के लिए अच्छा टीचर। बेस्ट टीचर इतनी बड़ी मांग है, लेकिन हमारी पूरी व्यवस्था में कुछ है ही नहीं कोई। मैंने एक छोटा सा प्रयोग गुजरात में शुरू किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन। सेपरेट यूनिवर्सिटी मैंने शुरू की है, वी आर फर्स्ट इन इंडिया, कि जहां पर 12th के बाद उसको पता है। ज्यादातर क्या होता है, डॉक्टर बनना था नहीं बन पाया, टीचर बन गया, इंजीनियर बनना था नहीं बन पाया, तो वो उसको टीचिंग के बोझ लगता है। 10th 12th से भी तो पता है मुझे इस प्रोफेशन में जाना है, तो वो वी कैन गेट द बेस्ट टीचर्स इन द वर्ल्ड। और हम दुनिया में टीचर एक्चुअल, और हम अच्छे टीचर करें तो अच्छी पीढ़ी तैयार हो सकती है। स्किल डेवलपमेंट, दुनिया के वो देश जिनके पास कम यूथ पावर है, उनका भी फोकस स्किल डेवलपमेंट है। हमारा तो सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए स्किल डेवलपमेंट के लिए, और इतना डिसेंट्रलाइज अरेंजमेंट होना चाहिए। और कोई भी नौजवान डिग्री से सर्टिफिकेट दिखा करके आज जिंदगी नहीं जी सकता है। हाथ में अगर हुनर है तो खुद तो जी सकता है, और को भी जीने की ताकत दे सकता है। ये हम कन्विंस कर सकते हैं। हमने अप्रोच बदलना पड़ेगा। और हम ये मान के अगर चले कि चाइना के साथ हमारी स्पर्धा है, तो 3 चीजें हैं जिस पर अगर हम बल देते हैं तो हम चाइना के साथ स्पर्धा में खड़े हो सकते हैं। और हमारी वो
ताकत है, उस ताकत का हम उपयोग कर सकते हैं। स्किल, स्केल एंड स्पीड, ये 3 विषयों में हम जितना बल देंगे, हम बहुत छोटा सोचते हैं। हमें आज जो ट्रेन है तो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस ट्रेन पर सोच जाता है। बुलेट ट्रेन का 500 बार सोचते हैं, बुलेट ट्रेन कर सकते नहीं कर सकते। हम बहुत छोटा सोचते हैं। बहुत बड़े स्केल पर सोचने की आदत देश में खड़ी करनी होगी, उसको पूरा करने की आदत बनानी होगी। स्पीड, हमारे यहां एक फाइल को उसकी पता नहीं कौन सा फ्यूल है उसमें, तो उसकी कोई स्पीड ही नहीं होती है। और कभी कभी तो रिवर्स गाड़ी गियर में चलता है। तो स्केल, स्किल एंड स्पीड, ये 3 ताकत में हम अगर बन दें, तो अगर चाइना के साथ हमको अगर स्पर्धा करने का हमारे सामने चुनौती है, हम उसको पूरा कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट की चिंता, ये विषय है जिसको नकारा नहीं जाए, और मैं तो उसमें रुचि रखने वाला हूं। लेकिन हम लोगों ने उस विषय को पश्चिम के नजरिए से हैंडल किया है। हमने उसे हमारे अपने नजरिए से हैंडल करना चाहिए। इस देश में जहां पौधे को परमात्मा माना गया है, ये देश जिसने नदी को मां माना है, उस देश को पश्चिमी नजर से या तो कोई अदर देश के लेटेस्ट विचारों से पर्यावरण सिखाने की जरूरत नहीं। हमने अपनी विधा खड़ी करनी पड़ेगी, और हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। हम उसको समझा सकते हैं, ये नहीं किया जाना चाहिए, लोग मानेंगे। ऐसा नहीं मानते हैं। हम इन बातों को लेकर के अगर चलते हैं तो मुझे विश्वास है, और आप देखते हैं ये वापस ट्रैक पर लाना कितना कठिन काम है। अगर वापस ट्रैक पर लाने वाली किताब को खोलने में इतना दम उखड़ गया, तो देश को वापस ट्रैक पर लाने का क्या करेगा। लेकिन देशवासियों के आशीर्वाद हैं, वो आशीर्वाद हमारा संबल है। हम इसे करके रहेंगे और होके रहेगा। धन्यवाद। Thank you, Mr. Prime Minister, for those very optimistic, and encouraging words. May I now request Ashley Tellis, the other co-editor of the book, to please give his vote of thanks to the Honourable Prime Minister and Honourable Finance Minister. Honourable Prime Minister, or Honourable Finance and Defence Minister, Secretaries to the Government of India, ladies and gentlemen, my dear friends, I have a brief but very pleasurable task this evening to call the proceedings that we have witnessed that made this book and this event possible. Mr. Prime Minister, I want to start with you. You have done us a signal, though I know you are in the midst of a maiden parliamentary session when you are about to present your first budget, which is going to define the contours of the... We're going to take the first steps in dealing with the challenges that this country is going to have to overcome over the remainder of your term in office. Despite that, you have taken the time to spend this evening with us, and for that I am deeply grateful. I also want to thank your personal staff. I don't need to mention them, you know who they are. Honourable Finance and Defence Minister, thank you for gracing the occasion as well. On many occasions in the past, your support as we proceed with our work here in India today. Honourable Prime Minister, this book, for both Vivek and me, has been a labour of love. It's been a small contribution that we have attempted to make to the great project of helping India recover its trajectory and its strength. Some of whom you know personally, all of whom you know by name. And so if for a brief moment the authors could just stand and just be seen by the Prime Minister, please do me that favor. Thank you so very much. I also want to place on record the people who have helped him, whom I worked with in the Bush administration. And last but not the least, I want to thank my 2 co-editors, Rhys Trevor,
my colleague at the Carnegie Endowment who is not here with us today, and my dear friend and colleague, Vivek Dubrow. I'm so tempted at this moment so much that I propose we do another starting tonight. And to all of you, thank you for coming. Even if you don't buy the book, I hope you will read the book and use the contents to the degree possible to support the Prime Minister and the Finance and Defence Minister in the work that they have done. Thank you very much. Thank you, Ashley. For the end of the evening, thank you, Mr. Prime Minister, once again. Thank you, Mr. Finance Minister, for gracing the occasion. Please remain